Hello students, welcome back to my YouTube channel School and Scholars. My name is Hasan Siddiqui and in this video I'm teaching you all class 8th mathematics chapter number 1 rational numbers. We have read this chapter a lot of times and we know rational numbers what they are, but in this video I'm again telling you what is rational numbers. Rational numbers क्या होते हैं इस वीडियो में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं ताकि जब हम आगे इसके एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगी। तो आगे जब हम लोग इस एक्सरसाइज करेंगे तब आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमारे नंबर्स आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? I hope that you all know what are natural numbers. Natural numbers are those numbers which starts from 1, like 1, 2, 3, 4, and so on. These are natural numbers. The different kind of numbers, the other kind of numbers we know is whole numbers. Whole numbers, what are whole numbers? Which starts from 0. So 0, 1, 2, 3, 4, and so on. These are natural numbers which starts from 1 and whole number starts from 0. Now these are two kinds of number, but the third kind of number is integers. We have no integers. What are integers? Integers are those numbers which have plus or minus, like positive and negative. Positive and negative. Like example में हम ले सकते हैं जैसे -4 और 4. This is a negative number and this is a positive number. So these are called integers which have positive or negative sign. These are another kind of numbers: natural numbers, whole numbers, integers. Now the next type of numbers comes rational numbers. Now we will get to know what are rational numbers. So rational numbers also called as fractions. Now you remember what are rational numbers and what are fractions? Yes, the numbers which can be defined, expressed as P upon Q. P upon Q. These are rational numbers. Now you guys आप सोच रहे होंगे कि P upon Q के फॉर्म में तो हम fractions लिखते हैं, इन्हें हम fractions बोलते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि fractions जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, like fractions को ही हम rational numbers भी कहते हैं। तो हमें पता चल गया rational numbers क्या होते हैं। rational numbers ऐसे numbers होते हैं जिन्हें हम P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यहाँ हमारे rational numbers मैंने आपको बता दिया rational number क्या होते हैं। अब तक हमने पढ़ा natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers. Now let's come to the next topic. So students, here is our next topic, which is closure properties. Properties of rational numbers. Properties होती है rational numbers की, कुछ properties होती हैं, उनमें हमें first property है closure property. पहले closure property पढ़ते हैं। Closure property is just like जैसे हम अगर natural numbers के example लें तो natural numbers में क्या होता है कि आपने एक नेचुरल नंबर लिया और उसमें दूसरा नेचुरल नंबर ऐड किया। जैसे हम नेचुरल नंबर लेते हैं 6 प्लस दूसरा नेचुरल नंबर लेंगे 2। ये भी एक नेचुरल नंबर है और ये भी एक नेचुरल नंबर है, दोनों को प्लस किया तो क्या आया? 6 + 2 मीन्स 8। नाउ 8 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। सो जब हम एक नेचुरल नंबर में दूसरे नेचुरल नंबर को ऐड करें तब हमारा उसका सम भी नेचुरल नंबर ही आ रहा है। यही चीज़ होती है क्लोजर प्रॉपर्टी में। अगर हम एक रैशनल नंबर में दूसरे रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा जो सम होगा वो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। सो इसे एक बार चेक करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर इज आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्लोजर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज होती है रैशनल नंबर्स की, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक जैसे हम अगर नेचुरल नंबर्स के एग्जाम्पल लें तो नेचुरल नंबर्स में क्या होता है कि
आपने एक नेचुरल नंबर लिया और उसमें दूसरा नेचुरल नंबर ऐड किया। जैसे हम नेचुरल नंबर लेते हैं 6 प्लस दूसरा नेचुरल नंबर लेंगे 2, ये भी एक नेचुरल नंबर है और ये भी एक नेचुरल नंबर है, दोनों को प्लस किया तो क्या आया, 6 + 2 मीन्स 8। नाउ 8 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। सो जब हम एक नेचुरल नंबर में दूसरे नेचुरल नंबर को ऐड करें तब हमारा उसका सम भी नेचुरल नंबर ही आ रहा है। यही चीज़ होती है क्लोजर प्रॉपर्टी में। अगर हम एक रैशनल नंबर में दूसरे रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा जो सम होगा वो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। सो इसे एक बार चेक करते हैं। सो रैशनल नंबर को क्लोजर प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले एडिशन में देखते हैं। एडिशन में क्या करते हैं, जैसे a/b ये हमारा रैशनल नंबर हुआ प्लस c/d, ये दोनों हमारे रैशनल नंबर्स हैं। इनको ऐड करने पर हमारा जो सम आएगा वो भी रैशनल नंबर ही होना चाहिए। मीन्स हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं लाइक e and f, e/f, ab + cd = e/f। अगर इसको सॉल्व करें एडिशन में, पहले हम एडिशन की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन लेंगे तो a/b में हम लिख सकते हैं 6 अपॉन या हम इसे यहाँ पे 4/6 लिख सकते हैं। 4/6 प्लस c/d की जगह हम लिख सकते हैं 2/6, मीन्स 4/6 प्लस 2/6। डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे डायरेक्ट 6 आएगा। एंड 4 + 2 न्यूमरेटर्स को प्लस करते हैं, 4 + 2 इज 6। सो 6/6 इट केम एज अ रैशनल नंबर। सो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन में अप्लाई हो सकती है। नाउ लेट्स कम टू द सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्शन में देखते हैं दैट सब्ट्रैक्शन में हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होती है या नहीं। सो सब्ट्रैक्शन में हम लिख सकते हैं दैट a/b - c/d इज इक्वल टू e/f। ये हम लिख सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स लेते हैं। सो 6/8 माइनस, ये एक रैशनल नंबर हुआ, माइनस 2/8 इज इक्वल टू, so 6/8 and 2/8 both are rational numbers and let's minus it. So what will be the answer? 6 denominators are same, so 8, and 6 minus 2, if we minus the numerators it will be 4, so 4/8. So it also came as a rational number, means जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होती है। अब यहाँ पर हमने ये भी कर लिया कि हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन में भी होती है and subtraction में भी होती है। Now let's check about the multiplication. Now let's check that whether the closure property applies in the multiplication or not. So इसको check करने के लिए हम again लिखते हैं a/b multiply c/d is equal to e/f। ये हम ऐसे लिख सकते हैं। So कोई भी नंबर हम लेते हैं तो लिखते हैं 4/6, this is the rational number, multiply 2/4। ओके, ये हमने लिखा। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 2 ज़ा 8, अगर हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई तो 4 × 2 इज़ 8 and 6 × 4 is 24. So it's also a rational number. 4/6 was a rational number and 2/4 is also a rational number, and when we multiplied it, the sum of it, the product is also came as a rational number. So it applies into multiplication as well as subtraction and addition. Now let's check the last one, division. So it comes on division now. डिविजन में भी जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो सकती है। हम क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर डिवीजन करेंगे, अगर हम किसी रैशनल नंबर को किसी दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तब हमारा उसका आंसर भी जो है रैशनल नंबर में ही आएगा। सो इट अप्लाइज इनटू द डिवीजन 2, a/d divided by c/d is equal to e/f. बट द कंडीशन इज दिस दैट जो हमारा नीचे के डिनोमिनेटर्स हैं लाइक b और हम ले सकते हैं d कैन नॉट बी इक्वल टू 0। b और d यानी डिनोमिनेटर्स हमारे 0 नहीं होने चाहिए, और ये नॉर्मल हमारा रैशनल नंबर्स में होता है। हम जब भी फ्रैक्शंस पढ़ते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दिस इज द थिंग टू कीप इन योर माइंड दैट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। सो स्टूडेंट्स, हियर इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारी रैशनल नंबर्स की सेकेंड प्रॉपर्टी है। पहले हमने पढ़ी
जो थी क्लोजर प्रॉपर्टी, उसमें हमने पढ़ा कि उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ऑल द फोर आर अप्लाइड. लेट्स टॉक अबाउट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नाउ. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक नंबर है a प्लस b, इसका सम विल बी इक्वल टू b प्लस a. लाइक अगर हमने a पहले लिखा है, b बाद में लिखा है, तो वो उसका सम भी वही आएगा जो हम अगर पहले b लिख दें और उसके बाद a लिखें. ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है. तो हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे a अपॉन b प्लस c अपॉन d, इसका इक्वल होगा c अपॉन d प्लस a अपॉन b. दिस इज व्हाट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज. तो इसे सॉल्व करके देखते हैं. सॉल्व करने में हम लिख सकते हैं हम 2 अपॉन में 5, 2 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5. दिस लिया. यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर्स सेम है, तो हम यहाँ डिनोमिनेटर में हम इसको सेम लिख देते हैं. न्यूमिनेटर्स को प्लस करते हैं. 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6. तो हमारा ये आया. इन दो रैशनल नंबर्स को प्लस करके अगर हम इनको रेसिप्रोकल कर देते हैं, हम 4 अपॉन में 5 लिख देते हैं और इधर प्लस 2/5 कर देते हैं. पहले हमने 2/5 प्लस 4/5 किया था, नाउ 4/5 प्लस 2/5 कर रहे हैं. अगर हम अब इसको प्लस करते हैं, सब भी नीचे डिनोमिनेटर में 5 रहेगा और ऊपर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6. मीन्स अगर हम रैशनल नंबर्स की पोजीशन को चेंज कर देते हैं तब भी हमारा आंसर सेम आएगा. यही चीज़ कहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो ये एडिशन में तो अप्लाइड है. नाउ लेट्स चेक सब्ट्रैक्शन. सो भी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एडिशन पढ़ा. एडिशन में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है. लेट्स टॉक अबाउट द सब्ट्रैक्शन नाउ. सब्ट्रैक्शन में हम लिख सकते हैं a अपॉन b माइनस c अपॉन d इज इक्वल टू c अपॉन d माइनस a अपॉन b. दिस व्हाट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज इन सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. सो अब हम इसको सॉल्व करें. सो हमने जो नंबर पहले लिए थे वही हम अब लेते हैं. 2 अपॉन 5 minus, this time it will be minus, plus upon 4 upon 5. 2/5 minus 4/5 is equal to 4/5 minus 2/5. Now let's solve it. 2 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? -2. एंड 5 मीन्स जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, तो 5. अगर यहाँ करें तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एंड 5 इज इक्वल टू 5. सो इधर आया -2 अपॉन में 5 एंड इधर आया 2/5. सो ये दोनों आंसर्स अलग अलग हैं. यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव नंबर है, यहाँ नेगेटिव नंबर है. सो जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती है. नाउ लेट्स कम टू द मल्टीप्लिकेशन. सो लेट्स स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन. नाउ हमने पढ़ा एडिशन में अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मल्टीप्लिकेशन. हम लिख सकते हैं a अपॉन b मल्टीप्लाई c अपॉन d इज इक्वल टू c अपॉन d मल्टीप्लाई a अपॉन b. ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन. नाउ लेट्स सॉल्व इट. नंबर्स हम सेम रखेंगे. 2/5 मल्टीप्लाई 4/5 ये लिखा इज इक्वल टू, पहले c या d वाला लिखते हैं, 4/5 मल्टीप्लाई 2/5. Now let's solve it. 2 into 4 is 8 and 5 into 5 is 25. इधर वाला सॉल्व करें तो 4 into 2 is 8 and 5 into 5 is 25. मीन्स ये वाला आंसर भी हमारा सेम है और ये भी सेम है. ये दोनों सेम आए हैं. मीन्स जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाइड है. Now let's come to the division. Whether the commutative property apply in division or not. So हमने इसको ऐसे लिखा a upon b divided by c by d is equal to c upon d is divided by 1 a upon b. हम इसमें दो नंबर्स लेते हैं. लिखा हमने 3 upon में 5 divided by 4 upon में 6. ये हमने लिखा. अब हम इसको सॉल्व करें तो 3 अपॉन में 5 तो हम एज इट इज़ लिख सकते हैं, लेकिन जब हमें रैशनल नंबर्स में डिवाइड करनी होती है तो द अदर नंबर वुड बी
पोजीशन चेंज होएगी इनकी, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, मीन्स इट विल बी लाइक, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 6 चला गया ऊपर एंड 4 विल बी डिनोमिनेटर। नाउ इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 into 6 is 18 and 5 into 4 is 20. It came up like this. So अब इसकी जो पोजीशंस हैं वो चेंज करते हैं। सो 4/6 पहले लिख देते हैं, 4/6 डिवाइडेड बाय 3/5. It came up like this. अब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो it will be 4/6 multiply 5/3. Denominator will be numerator and numerator will be denominator. Now इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 into 5 is 20 and 6/3 is 18. So पहले हमारा आंसर आया था 18/20, नाउ आया 20/18. सो दोनों आंसर्स डिफरेंट आए हैं. सो क्या इसका मतलब है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में अप्लाइड नहीं है, इट डजंट अप्लाई ऑन डिवीजन, सो इट इज़ ओनली अप्लाइड इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. आई होप कि आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं. थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर हमने 3 नंबर लिए हैं 4, 2 and 6 और हमें इनको प्लस करना है तो हम पहले इनको प्लस कर लेंगे. 4 + 2, जैसे 4 + 2 is 6, दैन इसको प्लस कर लेंगे, 6 + 6 is 12. अगर यही चीज़ में हम इनका पेयर बना लें 4 को छोड़कर, 2/6 2 प्लस और 6 का पेयर बना लें तो तब भी ऐसे ही रहेगा. 2 + 6 is 8 and 8 + 4 is 12. सो आंसर हमारा सेम ही आने वाला है. सो यही चीज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बोली जाती है कि अगर हम A/B + C/D + E/F में अगर हम इनका पेयर बना लेते हैं, इसका आंसर विल बी इक्वल टू A/B + C/D + E/F. अगर हम इनका पेयर बना लेंगे सो इनका आंसर जो होगा वो सेम आएगा. इसे मैं सॉल्व करके नहीं दिखाने वाली हूँ, इतना मुझे आपको बता दिया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हमें 3 रैशनल नंबर्स दिए हैं और हमने उसमें 2 का पेयर, पहले 2 नंबर्स का पेयर बना लिया है, अगर हम उसमें लास्ट के 2 नंबर्स का पेयर बनाएंगे तब भी दोनों का आंसर सेम आएगा. तो ये जो अप्लाई है ये सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती है, एडिशन में अप्लाई होगी, मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई हो जाएगी और डिवीजन में अप्लाई नहीं होगी. सो ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लाई होती है. बाकी जो 2 हैं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, इसमें ये अप्लाई नहीं होती है. लास्ट प्रॉपर्टी हमारी बची है, लेट्स कम टू दैट. सो नाउ स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स में हमारा लास्ट टॉपिक है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमसे क्या बोलती है कि हमने पढ़ा होगा कि कभी कभी हमें नंबर्स दिए जाते हैं 4(x + 6. सो हम इसकी ऐसे नंबर्स हमें दिए जाते हैं, हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं. सो हम पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, देन इससे करते हैं. सो इट कम्स अप लाइक 4 × x is 4x एंड 4 × 6 is 24 + 24. ये ऐसे आता है. तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें बोलती है लाइक A/B ब्रैकेट C/D + E/F. तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे करेंगे. सो इट विल बी लाइक A/B मल्टीप्लाई C/D. यहाँ पे प्लस है सो प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस का साइन लगाया, फिर A/B मल्टीप्लाई E/F. नॉर्मली हमें क्वेश्चंस में, एक्सरसाइजेस में इस तरह से दिया जाता है. हम इसमें देखेंगे कॉमन, यहाँ पे भी A/B है एंड यहाँ भी A/B है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं. A/B हमने एक कॉमन ले लिया और C/D + E/F में ऐसे लिख देते हैं. सो ये जो अप्लाई प्रॉपर्टी है हमारी एडिशन में अप्लाई हो सकती है और साथ ही साथ ये सब्ट्रैक्शन में अप्लाई. अगर हम यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का साइन लगा देंगे और यहाँ भी प्लस की जगह माइनस का साइन लगा देंगे तब भी ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होती है. सो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स खत्म होती हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स. अब पढ़ते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है. लाइक हमें यहाँ पे
कोई नंबर दिया है, हम ले सकते हैं P अपॉन Q, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं कि रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो P अपॉन Q हमें नंबर दिया है, लेकिन इस बार P में क्या है, माइनस है, ये एक नेगेटिव नंबर बन गया। तो जब हम इसका एडिटिव इनवर्स करेंगे सो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। मीन्स नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में करने का और पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। सो A अपॉन B कैन बी माइनस A अपॉन B and a minus A upon B can be A upon B. This is what additive inverse says. साथ में अब हमारे पास है multiplication inverse. What is multiplication inverse? मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होता है? इसमें भी ऐसे ही हुआ है, जैसे P अपॉन Q है, तो इसमें क्या होगा कि हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन इनवर्स करते हैं सो इसमें रेसिप्रोकल हो जाता है, मीन्स Q ऊपर आ जाएगा और P नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन इनवर्स करते हैं। सो एडिटिव इनवर्स में हम माइनस को प्लस में कर सकते हैं, लाइक नेगेटिव को पॉजिटिव में और पॉजिटिव को नेगेटिव में कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में हम जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। सो ये हमारा एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेशन इनवर्स हो गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन हमने पढ़ा था, नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन इज सिंपली अ लाइन जिसमें मिडल में यानी सेंटर में होता है ज़ीरो। अब इस ज़ीरो के राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स जाते हैं, लाइक 1 2 3 4 एंड 5, और इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स जाते हैं, लाइक -1 -2 -3 -4 -5। इस तरह से इसे हम नंबर लाइन बोलते हैं। अब ये रैशनल नंबर्स में कैसे वर्क करती है इसको चेक करते हैं। सो इसमें क्या होता है कि हमें कोई भी नंबर दिया है, लाइक -3 अपॉन में 6। हमने इस बार नेगेटिव नंबर लिया है ताकि आपको क्लियरली हो जाए कि कैसे करना है। कि -3 अपॉन में 6 हमने नंबर लिया, पहले इसको डिवाइड करते हैं। सो 3 है एंड 6 है, 6 हमारा आएगा एज अ डिविडेंट एंड 3 विल बी डिविजर। सो इसको डिवाइड करते हैं। सो इसमें क्या आएगा कि यहाँ पे हमने 6 लिया हुआ है, 6 बड़ा नंबर है तो पॉइंट लगाकर हम यहाँ 0 लगा सकते हैं, एंड 6 5 30। अब यहाँ पे 0.5 है, सो हम इसके पहले 0 लगा देंगे, तो इट विल बी 0.5। यानी जो हमारे पार्ट्स, जो हमारा 0.5 है, यानी जो हमारा नंबर्स हैं वो किसके बीच में लाई करेगा? 0 to 1 के बीच में, और माइनस के साइड में, बिकॉज इससे माइनस साइन। सो माइनस यानी लेफ्ट साइड में ये 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। अगर यहाँ पे होता 1.5 देन इट विल बी 1 to 2। अगर यहाँ पे होता 2.5 तो ये 2 और 3 के बीच में लाई करता। ये 0.5 है तो ये 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। सो हम इसे सॉल्व करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। दिस इज अ नंबर लाइन। अब हमें ये 0 और 1 के बीच में लाई करना है तो हम नॉर्मली यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मिडल में आना चाहिए, जब हमें जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 0 यहाँ लिया और 1 यहाँ लिया। अब नीचे हमारा था 6, यानी हमें ये जो बीच का जो डिस्टेंस है मिडल में, इसे हमें 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो हम इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे 6 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। सो इसको लिखते हैं 1/6। नीचे 6 है तो नीचे 6 रहेगा, बस -1 चलता जाएगा। -1 -2/6 -3/6, here will be -4/6 and -5/6, and here is 1. So ये बात है -3/6। so -3/6 is lying here. so यानी ये जो है ये नंबर यहाँ लाई करता है -3/6। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को शो कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करना है। पहले हमें इसको डिवाइड करना होगा, फिर 0.5, फिर जो भी हमारा आएगा
जो भी नंबर हमारा क्वेश्चन में आएगा उसके हिसाब से हमें देखना होगा कि जो हमारा नंबर है वो किन दो नंबर्स के बीच लाई कर रहा है। हमारा था 0.5, तो 0.5 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। अगर यहाँ पर 0 की जगह होता 1, देन इट विल बी फ्रॉम 1 to 2। सो यहाँ पर हमारा 0 था तो हमने इसे 0 to 1 के बीच में लाई किया, और इसके नीचे डिनोमिनेटर में जितने नंबर होगा उसी के उतने ही पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देंगे, और फिर उसे डिवाइड करके नंबर से देंगे, और फिर उसमें हम अपना जो नंबर हमें दिया है उसे पॉइंट आउट कर देंगे, उसे डिनोट कर देंगे। यहाँ पर हमारा रैशनल नंबर्स ऑफ नंबर लाइन खत्म होता है। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, यानी दो रैशनल नंबर हमें दिए गए हैं, उसके बीच के जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उन्हें हमें फाइंड आउट करना है। सो हमने पहले भी क्या हुआ है कि हमें 1 और 7 के बीच क्या क्या कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे नंबर्स हमारे 1 और 7 के बीच में आते हैं। इसी तरह हमें रैशनल नंबर्स का फाइंड आउट करना है कि रैशनल नंबर्स के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। सो जैसे हमें नंबर्स दिए हैं -4/6, ये हमें एक नंबर दिया है, और हमें दूसरा नंबर दिया है 2/4, ये हमें दूसरा नंबर दिया है। अब हमें इनके बीच के जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उन्हें फाइंड आउट करना है। सो हमें क्या पहले देखना होगा कि डिनोमिनेटर्स इनके दोनों डिफरेंट हैं, तो हम दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं 6 and 4 का। सो पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 is 6 and 2 2 is 4। नाउ अगेन 2 से करेंगे बिकॉज 2 यहाँ स्टिल है, सो 3 एज इट इज आ जाएगा, एंड 2 1s are 2। नाउ इट विल बी 3 3 1s are 3 and 1 is it। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2s are 4 and 4 3s are 12, ये आया हमारा 12। ये हमारा 6 and 4 का जो है एलसीएम आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम 4 and 6 को लेंगे, 4/6 -4/6 हम देखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 के टेबल में 12 2 बारी में आता है, 6 2s are 12, तो हम पहले यहाँ की मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 × 2, और जिस नंबर से हमने नीचे मल्टीप्लाई की है उसी नंबर से ऊपर कर देंगे, -4 × 2। सो इट विल बी लाइक 4 × 2 is 8 and it will be -6 × 2 is 12। यहाँ पर दूसरा नंबर लेते हैं 2/4। अब हमें 4 को 12 बनाना है, तो 4 की टेबल में 12 3 बारी में आता है, सो इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, और जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई की है उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड इट विल बी लाइक 2 × 3 is 6 and 4 × 3 is 12। सो ये हमारा आंसर आ गया। सो हमारे दो नंबर्स कौन से आ गए, -8 × 12/12 and 6/12। सो अब इसको नंबर लाइन पर डिनोट करके देखते हैं। सो अब हमारी ये दो नंबर्स आ गए हैं, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, यहाँ भी 12 आ गया, यहाँ भी 12 आ गया। सो इट विल बी लाइक -8/12 and 6/12। सो अब इसके बीच के जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उन्हें फाइंड आउट करते हैं। -8/12, और यहाँ लिख देते हैं 6/12। अब इसके पीछे जाते हैं क्योंकि माइनस में है, सो माइनस में चलेगा, सो इट विल बी -7/12, देन इट विल बी -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12 and -1/12। देन इट विल बी 0। यहाँ पर 0 आ गया, उसके बाद क्या आएगा, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 and 5/12 and lastly 6/12। 6/12 हमारा ये आ गया, और -8/12 ये रहा। सो इनके बीच में हमारे ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। सो हमने इस तरह हम निकालते हैं रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, और फिर उनसे इनकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, और फिर ये जितने भी हमारे नंबर्स बीच में आ रहे हैं उनके बीच के रैशनल नंबर्स को हम इस तरह निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो ख़त्म होता है।
हमारे रैशनल नंबर्स में यही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हमें अपने एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है। सो आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो क्लियर हो गया होगा। अब हम अगली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाएँ। एंड साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिखाए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।